तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर नंबर 9, कैंटो 1, चैप्टर नंबर 9, वर्स नंबर 35 करेंगे हम आज। तो इससे पहले क्या करा था हमने? एक्चुअली क्या चल रहा है कि ये भीष्म पितामह की स्तुति चल रही है। वो कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं डेथ बेड पे, राइट? तो अभी ये उसका 4th वर्स है उनकी ग्लोरिफिकेशन का, भीष्म स्तुति का। तो जैसे कि हमने लास्ट फ्यू क्लासेस में देखा था कि ये जो संस्कृत के जो श्लोकास हैं, दे आर नॉट लाइक नॉर्मल, जो हमारे नॉर्मल मीटर में नहीं गाए जाते। सो इनको गा के किया जाता है। सो मे बी यू कैन सिंग आफ्टर मी इन दैट पर्टिकुलर ट्यून। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, निज परयोर बलयोरथम निवेश्य। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, निज पर। च परयोर्बलयोरथ निवेश्य हितवती परसैनिकायु रक्ष्ण्या स्थितवती हृत- हृतवती पार्थ सखी क्षणा हृतिपासखेरतेर्ममास्तु। नाउ यू कैन रिपीट माताजी। स्थितवती परसै स्थितवती परसै निकायुररक्षणा, आयुररक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरतेर्ममास्तु। ऋतवती पार्थ सखे रमी मर्मास्तु। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये, निज परयोर बलयोरथम निवेश्य। स्थितवती परसै कायुररक्षणा, हितवती पार्थ सखेरतेर्ममास्तु। Alright. So, translation. In obedience to the command of his friend, Lord Shri Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana. And while there, he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Anyone wants to read? Srila Prabhupada ki jai. I can read, Prabhuji. Yes, please, Mataji. Just give me 1 second, yeah? Yeah. In the Bhagavad Gita, Arjuna ordered the infallible Lord Sri Krishna to place his chariot between the phalanxes of the soldiers. He asked him to stay there until he had finished observing the enemies he had to face in the battle. When the Lord was so asked, he at once did so, just like an order carrier. And the Lord pointed out all the important men on the opposite side, saying, "Here is Bhishma, here is Drona," and so on. The Lord, being the supreme living being, is never the order supplier or the order carrier of anyone, whoever he may be. But out of his causeless mercy and affection for his devotees, sometimes he carries out the order of the devotees like an awaiting servant. By executing the order of a devotee, the Lord becomes pleased as a father is pleased to carry out the order of his small child. This is possible only out of pure transcendental love between the Lord and his devotees,
And Bhishmadeva was quite aware of this fact. He therefore addressed the Lord as the friend of Arjuna. The Lord diminished the duration of life of the opposite party by his merciful glance. It is said that all the fighters who assembled on the battlefield of Kurukshetra attained salvation by personally seeing the Lord at the time of the death. Therefore, his diminishing the duration of life of Arjun's enemies does not mean that he was partial to the cause of Arjuna. Factually, he was merciful to the opposite party because they would not have attained salvation by dying at home in the ordinary course of life. Here was a chance to see the Lord at time of the death and thus attain salvation from material life. Therefore, and the Lord is all good, and whatever he does is everyone's good. Apparently, it was for the victory of Arjuna, his intimate friend. But factually, it was for the good of Arjuna's enemies. Such are the transcendental activities of the Lord. And whoever understands this also gets salvation after quitting this material body. The Lord does no wrong in any circumstances because he is absolute, all good at all the time. Haribol. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऑलराइट, तो इसमें थीम क्या चल रहा है हमारा कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और वहां पर युधिष्ठिर, सारे पांडव, सभी ऋषिगण और कृष्णा स्वयं वहां पर उपस्थित हैं। और उन्होंने पहले भीष्म पितामह ने उनको ज्ञान दिया, युधिष्ठिर महाराज को, कि राज्य कैसे चलाना है, धर्म शास्त्र वो सब कुछ किया। और उसके बाद नाउ ही इज गेटिंग रेडी टू लीव दिस वर्ल्ड। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और अब वो करने से पहले वो कृष्णा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। तो ये भीष्म स्तुति का इस बार ये हम जो वर्स कर रहे हैं ये फोर्थ वर्स है। वैसे तो टेक्स्ट 35 है ये चैप्टर 9 का, लेकिन फोर्थ वर्स है ये भीष्म स्तुति का। तो अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं, रतिर्ममास्तु, रतिर्ममास्तु, सो दैट इज द थीम के मेरी रति आपके चरणों में लगी रहे। लेट माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन दैट कृष्णा। एंड हु कृष्णा, वो कृष्णा के पास टाइम्स, एक एक करके वो कृष्णा के पास टाइम्स को याद कर रहे हैं, राइट। तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट, कि भीष्म पितामह जो कि 12 महाजनों में से एक है, वो वो ऐसी प्रे क्यों कर रहे हैं कि आपके चरणों में मेरी रति हो, आपसे मेरा प्रेम हो। वो तो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं वो प्रेम। तो वाई वाई इज डूइंग लाइक दैट, क्यों वो ऐसी प्रे कर रहे हैं कि लेट माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन यू। एनीवन वांट्स टू शेयर क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? और ऐसा वही नहीं है, और भी बहुत सारे भक्त हैं इतने। प्रभु जी, आई कैन ट्राई। आई एम जस्ट थिंकिंग, ऐसा तो नहीं है कि बिकॉज मटेरियल एनर्जी का जो इफेक्ट है वो हम पे इतना ज्यादा होता है कि हम शायद भगवान की आराधना से कभी भी हट सकते हैं, तो उस डर से, या
वी जस्ट वांट टू स्टे फोकस्ड भगवान की पूजा में। Correct. But that is applicable to people तो like us. आप, हाँ, आई नो, दैट्स हमारे, व्हाट आई वाज आल्सो डाउटफुल अबाउट, हाँ, और नॉट श्योर। हाँ, नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए 100% यू आर राइट। राइट राइट। को तो डरना चाहिए और हमें तो ये प्रेयर रोज करनी चाहिए। ठीक है, हम्म। आपके चरणों में हमारी रति हो। ठीक है, बट भीष्म पितामह जो 12 महाजन हैं, वो महाजन क्या है, जहाँ से ये धर्म, जहाँ से धर्म की स्थापना हुई है, दे आर द बोनाफाइड पीपल टू डू द कृष्ण कथा तो भागवत। प्रभु मे भी वो चाहते हैं कि हम इसको रियलाइज करें, हमारे लिए एक मैसेज छोड़ रहे हैं, हम्म, दे रहे हैं कि वी शुड बी इन भक्ति भगवान। भगवान में रत बनी हाँ रहे। हाँ हाँ, हमारे लिए मैसेज है उनकी तरफ। हरे कृष्णा प्रभु, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जैसे अब इस वर्ष में वो बोल रहे हैं कि रतिन ममास्तु, कि आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, मेरी आसक्ति हो, मेरा ध्यान जो है, माय माइंड शुड बी फिक्स्ड अपॉन कृष्ण, ये रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों ये तो महाजन है, इनकी ऑलरेडी है ये, ही ऑलरेडी हैज रति, व्हाई ही इज प्रेइंग लाइक दैट मेरी रति हो जाए। आई थिंक प्रभु, क्योंकि जितने ग्रेट डिवोटी होते हैं उतना उनमें ह्यूमिलिटी होती है, और उनको ऐसा लगता है कि वो अभी इतना प्यार नहीं करते, मतलब उनको और प्यार करना है। क्यों लगता है उनको ऐसा कि ऐसा नहीं करते? मतलब उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता भगवान की सर्विस करने से, कि दे वांट मोर एंड मोर, तो उनको कभी करेक्ट, ऐसा लगता ही नहीं दे हैव अचीव दैट लेवल। आई थिंक प्रभु, मुझे दैट इज द करेक्ट आंसर, कि उनकी भूख इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो जितना भी कर लें, वो जितना भी कर लें, फिर भी उन्हें लगता है अरे कुछ किया ही नहीं मैंने। जैसे हम बहुत भूखे हों कभी, तो जब बहुत भूखे होते हैं तो अब लगता है ना ऐसे कि कितना भी खा लो, फिर लगता है अरे यार अभी भूख मिटी नहीं है, और खाते हैं और खाते हैं। यहाँ कह लो कि पेट फिर भी भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, तो दे नेवर गेट सेटिस्फाइड। उनकी भूख बहुत ज्यादा है, उनकी लालसा, ऐसे लोगों की लालसा बहुत ज्यादा है, भगवान की सेवा करने की अनंत लालसा है उनमें। दे कैन सर्व लॉर्ड एंडलेसली, नॉट लाइक अस, थोड़ा सा किया चल यार अब थक गए, अब किसी और को दो ना प्रभु, इतना तो कर लिया मैंने, किसी और को भी मौका दो, मैं ही करी जाऊंगा, सारी सेवा मुझे ही दोगे। बट दीज पीपल आर डिफरेंट। वो चामर चामर कभी झुलाओ है ना, चामर जब देते हैं वो हाथ थक जाता है ऐसे करते करते। अब कितनी देर चामर कर लोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिसकी ये सर्विस है चामर करने की, वो एंडलेसली करे जा रहा है, करे जा रहा है, और वो थक भी नहीं रहा और वो बोर भी नहीं हो रहा। दैट्स द पॉइंट, राइट? तो उनमें उनमें और लालसा है। अब क्या है कि भीष्म पितामह जाने वाले हैं, ये वर्ल्ड छोड़ के जाने वाले हैं, तो उनकी लालसा है कि ही इज मेकिंग श्योर कि कृष्णा मेरी रति बनी रहे, इवन इफ आई गेट इन द नेक्स्ट बॉडी, ऐसा ना हो कि वो मेरी रति चली जाए। तो वो दैट्स व्हाई ही इज प्रेइंग कि रतिर ममास्तु, कि मेरी वो रति आप में बनी रहे। बहुत बड़े बड़े भक्त, युधिष्ठिर महाराज, ये सभी जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, उन सबकी ऐसी ही प्रेयर्स होती हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भी क्या कहा, और वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मेरी भक्ति तो कुछ भी नहीं है। वो ऐसे भक्त जो हैं वो अपने आप को हमेशा नीचे देखते हैं, राइट? दास 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 अनुदास, और लोगों को वो ऊपर देखते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज ने भी क्या कहा था कि मैं कैसा भक्त हूँ, देखो मेरे हाथ से कितने ये वायलेंस हुई है, ये सभी लोग मेरे कारण मरे हैं। जबकि कृष्णा बोल चुके हैं कि इनका अंत मैंने कर दिया है, राइट? भगवत गीता 11 चैप्टर में विराट रूप जब उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला कि मैं मार चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। अपने आप अपनी सर्विसेज में त्रुटियां देखते हैं, वो अपनी सेवा में त्रुटियां देखते हैं, ना कि दूसरों की सेवा में त्रुटियां देखते हैं, राइट? वेयर एज हमारे जैसे क्या है, वी आर lenient on ourselves and strict on others, whereas we should be strict on ourselves and lenient on others, right? रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, जगाई मधाई सबको पता है ना, जगाई मधाई वर लाइक द बेडेस्ट गाइज। आज की डेट में वो होते तो वो मतलब चोरी चकारी लूट पाट वट एवर जो भी बुरा सोच सकते हो, वो लोग वो करते थे। और रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि
कृष्णा, यू आर सो, हम, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं जिन्होंने ये लिखा है सब कुछ, ठीक है, जो हमारे वन ऑफ द मेन आचार्यज हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जगाई मधाई ने तो क्या किया है, पाप कर रहे हैं ना वो तो, आपका ये किसी का लूटना मारना मर्डर करना, ये सब ये पाप किया उन्होंने। ये तो आपका 2-4 बार नाम लेंगे और ठीक हो जाएगा सब कुछ, वो सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन लुक एट मी, मैं कितना कितना मिसफॉर्चुनेट हूं मैं, कि मैं मुगलों मुगलों की नौकरी कर रहा हूँ, और जो वैष्णव के अगेंस्ट हैं, वैष्णवों के अगेंस्ट हैं, इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर फाइंडिंग फॉल्ट इन देमसेल्व्स। तो भक्त को, दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ प्योर भक्ता, अपने आप में दोष देखेंगे तभी हम इम्प्रूव हो पाएंगे। अगर हम दूसरे लोगों में दोष देखते रहेंगे ना, तो क्या होगा, वो वाले दोष हम में आ जाएंगे। राइट, व्हेन यू मेडिटेट ऑन अदर पीपल बैड क्वालिटीज, वो क्वालिटीज आप में आ जाएंगी। अगर आप दूसरे लोगों की अच्छी क्वालिटीज पे मेडिटेट करोगे, वो आप में आएंगी। राइट, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी त्रुटियां ढूंढें, और तभी हम उसमें रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की सिंसेरिटी देखते हैं, वो भी त्रुटियां नहीं देखते। वो भी अपने बच्चों की, अपने भक्तों की सिंसेरिटी देखते हैं, और उसमें अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और उसमें उनकी इच्छा देखते हैं सर्विस करने की। तभी हम जैसे लोग थोड़ी बहुत सर्विस कर पाते हैं। क्योंकि अगर कृष्णा भी ऐसे फॉल्ट हम में देखने लग जाए, हम तो सर्विस ही ना कर पाए। वो सारी चीजों को ओवरलुक करके, जो भी हम 1% 2% अच्छा कर रहे हैं, वो हमें उसमें आगे बढ़ने दे रहे हैं। राइट, तो यही भक्त की प्रार्थना होती है कि वो रति जो है वो बनी रहे, जन्मों जन्मों तक वो रति बनी रहे, कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, बस। ठीक है, तो यही हमारा, स्पेशली ड्यूरिंग द चैंटिंग, ये हमारी प्रे होनी चाहिए कि रति, भगवान के चरणों में रति के अलावा और कुछ नहीं, कोई गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस नहीं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ चैंटिंग। नहीं तो क्या है, आजकल हम भक्ति परीक्षा में रिचुअल और स्पिरिचुअल वाला डिस्कस कर रहे हैं। चैंटिंग विल बिकम, हमें लगता है ना कि चैंटिंग इज द स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इजंट इट। हम तो चैंटिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग रिचुअल्स, वी आर डूइंग अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। बट अभी मैं लेक्चर सुन रहा था रिचुअल और स्पिरिचुअल के बीच के डिफरेंस का, तो उसमें प्रभु ने बड़ी अच्छी बात बोली कि चैंटिंग भी will become a ritual, or has already become a ritual for people like who are not doing attentive chanting. डिफरेंस क्या है रिचुअल और स्पिरिचुअल में, कि कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, वो कृष्णा के साथ हम अगर जुड़ने की ट्राई कर रहे हैं, देन इट इज स्पिरिचुअल, अदरवाइज इट इज अ रिचुअल। तो अगर हम इन अटेंटिव चैंटिंग सुबह लेके बैठ गए हैं हम माला को, और ध्यान हमारा कहीं और है, हम कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चैंटिंग कर रहे हैं, ना कि हम चैंटिंग के लिए चैंटिंग कर रहे हैं। वेयर एज हम एक्चुअली चैंटिंग के लिए चैंटिंग कर रहे हैं कि मेरे 16 माला हो जाएं और खत्म हो जाए काम मेरा। सो दैट हैज बिकम अ रिचुअल। उस रिचुअल का कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इन दिस बहुत कम फायदा, क्योंकि नाम ले रहे हो एटलीस्ट भगवान का, तो दैट इज उतना ही फायदा होने वाला है। अदरवाइज माला फेरत जग भया, हाँ क्या बोलते हैं उसको, एक है ना, मिटाना मन का फेर। मन का फेर नहीं जाने वाला है, जितनी मर्जी बहु नाम जन्मनाते करते रहो। हम वो बोलते हैं ना 10 ऑफेंसेस से पहले, क्या बोलते हैं वो, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तनम, कबू ना पाए कृष्णा पदे प्रेम धन। कृष्णा प्रेम धन नहीं मिलने वाला, कितने जन्मों तक ये माला फेरते रहो, अगर हम इनअटेंटिवली करेंगे। हाँ जी रुचिता माता जी। प्रभु दैट्स सो ट्रू। उस इंटेंशन से हमें चैंटिंग करने की, हम कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि मुझे सच में रियलाइज नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं वो 16 माला मुझे कंप्लीट करनी है, वो अकाउंट रखने में आई एम डूइंग इट। बट हम्म। अगर वो अकाउंट रखे ना, तो हम 16 माला कर नहीं पाएंगे, विच इज आवर डेली रिचुअल इन अ वे। हाँ हाँ, तो नहीं। कैसे उसको बैलेंस करो, आप भगवान में खो जाओगे तो आप 16 माला का अकाउंट कैसे रखोगे फिर, मतलब हाँ, इट्स। हो जाओगे खोना, मतलब खोना ऐसे नहीं है, बट खोना अटेंटिवली। अभी अभी जो हमारी स्टेज है ना, वो खोना इतना ही है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे सुने, श्रवणम कीर्तनम, दैट्स इट। अभी उतना ही रखना है। आई डोंट नो के, अब मतलब मैंने तो कभी ऐसी नहीं करी चैंटिंग के
कि मैं मेरे को काउंट का पता ही ना चले और मैं एकदम ट्रांस में हो जाऊं कि वो राउंड्स में करे जा रहा हूँ, हम्म। करे जा रहा हूँ। मे बी मे बी समवन इज, यहाँ आप ऐसे लेवल पे होंगे कि जहाँ पर नहीं। हम तो क्या करते हैं, ऐसे आंख खोल के देखते हैं, अच्छा 16 माला अभी वो आया क्यों नहीं वो वापस। हाँ। राइट। तो दैट्स द पॉइंट। अभी हम ध्रुव महाराज वाला पास टाइम कर रहे हैं भागवतम में। तो उसमें भी ध्रुव महाराज गॉट लिबरेशन, गॉट विष्णु इन 6 months, जस्ट 6 months। और हम कितनी देर से कर रहे हैं, ठीक है, 3-4 साल सबको हो गए, तो क्यों नहीं रिजल्ट्स आ रहे? बिकॉज ऑफ इनअटेंटिव चेंटिंग। तो आपका पॉइंट सही है जी, कि जब हम बैठे वहां पर तो सभी के साथ ही ऐसे, आपके साथ ही सभी के साथ है कि वो हमारा है फोकस होता है चेंटिंग करने में, सोइंग ऑफ करने में, वेयर एज फोकस होना चाहिए कि दिस इज माई क्वालिटी टाइम विद कृष्णा। राइट। तो वो अटेंटिव चेंटिंग निकलेगी, वो रति आएगी। मेरा ये होना चाहिए कि हाँ भगवान, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप में रति आए, अदरवाइज इट्स जस्ट अ रिचुअल। हम्म। तो इज इट ओके समटाइम्स आप 16 माला कियो नहीं कियो, मतलब मेरे साथ होता है क्योंकि ऐसा कभी कभी। आई एम नॉट सेइंग आई एम टोटली इनटू इट चैंटिंग, मुझे नहीं मालूम मैं सच में होती हूँ कि नहीं, बट आई लूज दैट ट्रैक कि मैंने एक राउंड किया कि अभी दो किया कि कितना किया, लाइक कभी कभी। हाँ, करेक्ट। सो इसका क्या है, इसका बड़ा अच्छा वो देते हैं ओजस्वी प्रभु, ई ई ई। ठीक है, एक तो नाउ आई एम नॉट टेलिंग कि आपका कौन सा है, बट आई एम जस्ट टेलिंग द जनरल, जो भी एक जनरल प्रिंसिपल है, ई ई ई। तो वो फर्स्ट ई क्या है? इजी। इजी में क्या है? अरे प्रभु जी पता ही नहीं चला चैंटिंग कब हो गई, हम्म। क्यों? माइंड कहीं और था और माला करते रहे 16 माला हो गई, वाह प्रभु, हम मेरी तो हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। दैट इज वेरी इजी, दैट इज इजी चैंटिंग। ये मेरी इजी चैंटिंग नहीं होती है प्रभु, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तभी मैंने पहले क्लैरिफाई किया, दैट्स नॉट फॉर यू, आई एम जस्ट टेलिंग दैट। सो यू नाउ आई टेल अदर टू, देन यू कैन कैटेगराइज कि आपकी कौन सी वाली में फॉल। नेक्स्ट इज एफर्ट। उसमें पता चलता है एक एक, जब हम मंत्रा सुनते हैं, एक एक बीड को आगे करते हैं, एक एक मंत्रा सुनते हैं, एक एक बीड को आगे करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एफर्ट। उसमें 2 घंटे बाद पता चलता है पसीना, अरे यार पता चला कि कंसंट्रेशन करने की कोशिश करी, ध्यान भटका वापस आया, ध्यान भटका मैं उसको वापस लेके आया, ध्यान भटका वापस लेके आया। तो वो एफर्ट, बहुत सारी एफर्ट लगती है उसमें। सो दैट इज एफर्ट। देन द थर्ड वन इज एक्सपीरियंस। when you are chanting and you are directly seeing Krishna in front of you, right? तो वो एक्सपीरियंस, यू आर एक्सपीरियंसिंग कृष्णा। जैसे अगर मैं आपका नाम लूँ, अगर मैं आंखें बंद करके किसी का भी नाम लूँ, तो उस बंदे का चेहरा मेरे सामने आ जाएगा, मेरी आंखों के सामने, isn't it? सो ऐसे ही जब हम कृष्णा का नाम ले रहे हैं, जब हम राधा रानी का नाम ले रहे हैं, तो वो उनका चेहरा हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा? तो जब वो आने लग जाए, आंखें बंद करके नाम लें और उनका चेहरा हमारे सामने स्ट्रेट अवे, सो दैट इज द एक्सपीरियंस, राइट? So this is what we are thriving for. Does that make sense, Madam? यस प्रभु जी, सो विद एफर्ट इट कैन बिकम एफर्टलेस इन फ्यूचर। हाँ, अब वो एफर्टलेस, कौन सी वाली एफर्टलेस है? इज आई लीव इट, अपनी वो आई कैन नॉट से एनीवन। सो दो तरह की एफर्टलेस है, एक एफर्टलेस है, नहीं, when you can see कृष्णा, that is like आप मेहनत नहीं कर, आपको कृष्णा दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, राइट। सो नाउ, अब इसमें भीष्म पितामह दो चीजों पे बोल रहे हैं, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। There are two things he is talking about. What are those two things? Therefore, address the Lord as friend of Arjuna. अब वो क्या बोल रहे हैं अर्जुना को? भगवत गीता में क्या, सॉरी, इस वर्ष में क्या बोल रहे हैं? दिस वॉज डन सिंपली बाय लेट माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन दैट कृष्णा। ये हमने पढ़ लिया, रतिर ममास्तु, वी डिस्कस दैट। नाउ ऑन दैट कृष्णा, हु इज दैट कृष्णा? दैट डेफिनेशन ही हैज गिवन अबव। अब वो उस स्पेसिफिक पास टाइम पे ड्रिल डाउन कर रहे हैं। कौन से वाले पास टाइम पे? व्हेन हिज फ्रेंड, in obedience to the command of his friend, Lord Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana. At the command of his friend, Sakhi Vachah,
ये हमने पढ़ा था ना, सपदी सखी वाचो निशम्य मध्ये, राइट। सो सपदी सखी वाचो, तो उनके अपने सखा के वाच पे, सखा के कहने पर उन्होंने क्या बोला था, सखा ने क्या बोला था, वो इट इज मेंशन्ड इन चैप्टर नंबर 1, 21 से 25। विल क्विकली गो देयर। 21 से 25 क्या बोला था? Arjuna said, O fallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and whom I must contend in this great trial of arms. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Sanjaya said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. In the presence of Bhishma and Drona and all other chieftains of the world, the Lord said, just behold Partha, all the Kurus assembled here. अर्जुन ने क्या बोला था उनको? सेना मध्योर, उस सेना के दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाइए कृष्ण। कृष्णा ने चुपचाप ले गए, उन्होंने कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन आस्क्ड। क्यों? उन्होंने कहा कि ओके, ही इज माय फ्रेंड एंड ही इज आस्किंग मी टू डू, आई विल जस्ट डू इट। ही वाज डूइंग इट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस कि क्यों, पता तो है, मैं बता देता हूँ, मेरे से पूछ ले। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ही जस्ट, जो उनकी कमांड थी, ही फुलफिल्ड इट। और पर उन्होंने किया क्या, जाके बड़े टेक्टफुली भीष्म और द्रोण के सामने रथ को खड़ा कर दिया, सो दैट बिकॉज ही न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट वी डिस्कस मेनी टाइम्स इन भगवद गीता। नाउ द पॉइंट विच इज कमिंग इज, देयरफॉर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, he therefore addressed the Lord Krishna as a friend of Arjuna. So that Krishna means वो वाला कृष्णा जिसने अर्जुन, जो अर्जुन का फ्रेंड है और उसकी कमांड पे चलता है। तो भीष्म कामा के मन में वो वाला सीन सामने आ रहा है जब कृष्णा ने अर्जुन की बात मानी थी एज अ फ्रेंड, राइट। सो फ्रेंडशिप पे एक बड़ी अच्छी बुक है, मैं पढ़ रहा था उसकी, शुभ विलास प्रभु की। तो भगवान जो है, भगवान इज नॉट अ ऑर्डर फुलफिलर कि हाँ भाई उसने बोला तो मैं कर दूं। ही डिड इट फॉर टू रीजंस। एक रीजन जो हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज द फ्रेंडशिप, राइट। तो कृष्णा वाज अ फ्रेंड ऑफ अर्जुन। नाउ वी आर ऑल्सो सीकिंग फ्रेंडशिप इन दिस वर्ल्ड, राइट। हम क्यों फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं? so that they bring happiness and love to us. सिंपल रीजन, जॉय, दे ब्रिंग जॉय। हमें हर एक चीज से हमें क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, है ना। हम भक्ति वृक्षा में यही पढ़ रहे थे ना अभी, जो इनिशियल क्लासेस में, ये भक्ति हमें हर एक चीज में मजा चाहिए, जॉय चाहिए। तो हम फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप में भी हम क्यों किसी के साथ फ्रेंड्स बनते हैं? सो दैट दे कैन ब्रिंग जॉय इन माई लाइफ। और देर आर 4 लेवल्स ऑफ फ्रेंडशिप। किसी को पता है का 4 लेवल्स कौन से हैं फ्रेंडशिप के? नहीं? हाँ। तो फर्स्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप इज कॉल्ड बंधु और एसोसिएट्स। और बंधु क्या होते हैं? जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे नेबर्स हो गए, हमारे स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, कलीग्स, जितने ज्यादा हो उतना द मोर द बेटर, ठीक है। और ये करते क्या है, ये जो ये वाले जो कैटेगरी के लोग होते हैं, ये करते क्या है, जो हमारे आसपास के पीपल हैं, दे हेल्प ईच अदर, राइट। दे कम टुगेदर फॉर अ पर्पस, और जब वो पर्पस फुलफिल हो जाता है, दे पार्ट देयर वेज, एज सिंपल एज दैट। कलीग्स, कॉलेज मेट्स, राइट। जैसे मैं मेरे कॉलेज में 4 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था, एक वन सेट ऑफ बंधुज वर फॉर नोट्स। जब भी मुझे नोट्स चाहिए होते थे, वो आई आई अप्रोच देम, ठीक है। नोट्स हो गए, आई पार्ट, मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। एक मेरे फ्रेंड्स होते थे, वो क्रिकेट ग्रुप होता था, वो क्रिकेट खेलते थे, तो मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था, तो वो उनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था। बाद में ओके बाय बाय। एक होता था मूवीज देखने वाला, वो कॉलेज से बंक मार मार के मूवीज देखते थे। सो एक मेरा वो, फिर एक गर्लफ्रेंड। तो ये सारे सारे ये ग्रुप्स, फिर गर्लफ्रेंड आए तो फिर बाकी सारे ग्रुप्स खत्म हो गए। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट द पॉइंट हियर इज,
कि दीज आर द बंधुस जहाँ पे वी कम फॉर अ पर्पस, वो पर्पस खत्म हुआ, बात खत्म, ओके टाटा बाय बाय। एंड यू विल बी अमेज्ड कि 95% of our friendships are at this level. If we analyze, they are at this level, and these are the people who will not compliment you, they will compete with you, they are envious of you, right? They try to pull you down. So this is first level of friendship called bandhus or associates. Then comes the next level, sakhas, friends. ये some people are not contented by just being bandhus, तो वो next level, they make inroads into your hearts, तो वो आपके दिल में थोड़ी सी इनके लिए जगह बनने लग जाती है। और ये जो जगह बनती है, ये कैसे बनती है? एक बिल्डिंग मटेरियल होता है जिससे ये जिससे ये रोड बनती है। वो बिल्डिंग मटेरियल क्या है? एनी गेसेस? स्पिरिचुअल एसोसिएशन। नो, मैं तो अभी नॉर्मल, अभी तो मैं स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल। When they do selflessly something for you. सेल्फलेसली वाला अभी अगेन हाई लेवल है, अभी ये जस्ट अच्छा, फ्रेंड्स वाले लेवल पे हूँ मैं, अभी मैं सिर्फ सखा तो वाले। मुझे नहीं पता। Whom you can trust, Prabhuji. हाँ जी, Cement. सीमेंट। सीमेंट They Somebody you can can trust. somebody who can do something for me. हाँ, सो Give and take. ये गिव एंड टेक वाला बंधुस में आ गया। ये गिव एंड टेक से ऊपर है। और वो बिल्डिंग मटेरियल पता है क्या है? टाइम। टाइम। ये दोस्ती ऐसे नहीं बनती, दोस्ती के लिए टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, तुम्हारा बहुत टाइम लेती है दोस्ती, isn't it? तो अब टाइम पे बाद में आता है कि हम कितना टाइम एज अ गृहस्था, एज कितना हम दे सकते हैं। जितना हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतनी हमारी दोस्ती गहरी होगी। अब वो टाइम हमें देखना है कि वो टाइम हमें किसको देना है। सो विल कम टू दैट, अभी मैं बेसिक लेवल पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सखाज हैं, दे दे कॉम्प्लीमेंट यू, दे डोंट कम्पीट विद यू, दे आर नॉट एनवियस ऑफ यू। वो आपकी ग्रोथ से खुश होते हैं। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपकी ग्रोथ से वो खुश होंगे, आपको पुल डाउन नहीं करेंगे, आपसे एनवियस नहीं होंगे। ये उस कैटेगरी में आते हैं ये लोग, राइट? तो फिर आप पूछ सकते हो कि उनको क्या चाहिए, उनको वाई दे आर लाइक दैट। ऑल दे नीड इज लिटिल बिट ग्रेटिट्यूड, दे थ्राइव ऑन ग्रेटिट्यूड। सो अगर कोई ऐसा आपको मिलता है जो आपसे एनवी नहीं करता, जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करता है रादर, और आपको पुल डाउन नहीं करता, और आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, सो वी शुड लैच ऑन टू देम। उनको हमें हमें वी शुड हैव आइज। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि हमें अपनी मटेरियल लाइफ में हमें पता चल सके कि मुझे किसको कितना टाइम देना है, कैसे मुझे सेलेक्ट करने हैं फ्रेंड्स। देन कम्स द प्रिय सखास। प्रिय सखास आर द इवन रेयरर, वेरी वेरी रेयर। सखा थे, पहला बंधु था, फिर सखा था, थर्ड है प्रिय सखा। दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स, यू लव टू बी विद देम। आप उनकी कंपनी में एंजॉय करते हो, कोई नेगेटिव टॉक्स, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, दे लिफ्ट योर स्पिरिट्स अप, दे कॉन्स्टेंटली पुश you towards the positive changes in life. And when it comes to your growth, वो सारा अपना तुम्हारी पूरी जान लगा देंगे कि आप ग्रो कर सको। तो these are the प्रिय सखास। So then comes the fourth level, who are suhrits, best friends. Now these best friends are 1 in million, 1 million में एक मिलेगा आपको। और ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए हमेशा हैं। कोई भी मेजर इंसिडेंट हो आपकी लाइफ में, दे आर द फर्स्ट वंस टू टर्न अप। और यहाँ पर जो आप सब लोग बोल रहे थे ना, दे सेक्रीफाइस फॉर यू, और दे स्टैंड अप फॉर यू व्हेन नो वन एल्स डज। वो आपकी सक्सेस पे प्राउड फील करते हैं। अगर आप फेलियर हो तो वो आपके साथ बैठ के रोएंगे। दे लव यू अनकंडीशनली, दे एक्सेप्ट यू द वे यू आर। आइडियल लग रहे हैं ना ये सारी बातें? दैट इज वाई दे आर 1 in a million। सो कोई पेटी टॉक्स नहीं, डायरेक्ट आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो जो मुद्दे की बात है। नो फ्लफी स्टफ, नो पेटी टॉक्स, राइट? यू कैन ट्रस्ट देम, कॉन्फिडेंशियल टॉक्स कर सकते हो आप उनके साथ। आपको पता है कि ये इससे बाहर नहीं जाएगी, किसने ट्रस्ट भी बोला था ना, तो यू कैन ट्रस्ट देम। सो दिस इज द बेस्ट फ्रेंड वाली कैटेगरी, विच इज 1 in a million। Sorry about that, but if you get that person,
यू मेक श्योर आप उसको अपनी लाइफ से जाने मत दो। और ये क्या सीख करता है? रिस्पेक्ट। जस्ट बिकॉज ही गिव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू एंड ही सीक्स लिटिल बिट रिस्पेक्ट इन रिटर्न। तो अर्जुन एंड कृष्णा पर सुहृत्स। कृष्णा ने सेक्रीफाइसिंग। कृष्णा को क्या पड़ी है कि उनका आके मैं रथ हाँकूं? क्या पड़ी है उनको? कुछ नहीं पड़ी ना। सेक्रीफाइस, द एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस इज देयर, द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज देयर। उनकी कमांड पे उन्होंने बोला चलो सेंटर में लेके जाओ। ओके सर, मैं ले जाता हूँ। नो मैटर व्हाट, दे आर स्टैंडिंग विद यू अनकंडीशनली। दे लव यू अनकंडीशनली। सो नाउ सी इफ यू फाइंड सच अ फ्रेंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, 1 मिलियन लोगों से मिलो, उस 1 मिलियन 1 मिलियन लोगों में से ढूंढो ऐसा कौन है और ट्राई करो। मैंने अभी इतना ही पढ़ा है उस बुक में, इससे आगे मैंने पढ़ा नहीं कि वेयर वेयर ही इज हेडिंग टुवर्ड्स शिव विलास प्रभु। तो मे बी ही इज व्हाट आई एम, दैट्स माय गट फील, आई कुड बी रॉन्ग। वेयर ही इज हेडिंग टुवर्ड्स इज टुवर्ड्स कृष्णा, एंड दैट वी हैव सीन एज वेल, राइट? कि कृष्णा और अर्जुना का बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक दिस। right? So where we should invest our time, again this is not from the book, this is I am telling, जो मेरी interpretation है कि मुझे लगता है कि I should be spending time with my best friend who has all these qualities and that is Krishna, and that is the crux of the first purport। और इसी इसी पास टाइम पे ही इसी फ्रेंड वाले उस पे भीष्म पितामह भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि दैट कृष्णा, वो वाला कृष्णा जो कि अर्जुन का सुहृत है। I'll again share my screen and show you कि he is never the order carrier or order supplier of anyone, huh? But he's just doing it because of his causeless mercy and affection। वो affection है उसकी के he is acting like a servant, huh? The order, by executing the order of a devotee, the Lord become pleased and he, जैसे बच्चे का ऑर्डर फादर मानता है ना, ऐसे वो उनका ऑर्डर मान रहे हैं एज अ, वो इतना प्यार है उनमें, right? And therefore he addressed the Lord as the friend of Arjuna। है ना, ऊपर आता है ना, पार्थ कहीं था ना वो, पार्थ, हाँ पार्थ सखे। उनको वो पार्थ सखे रतेर ममास्तु। पार्थ सखे, पार्थ के तो एज अ फ्रेंडशिप वो क्या देख रहे हैं कि अर्जुन इज हायर देन मी, बिकॉज वो कृष्णा के क्लोज है, वो साख्य रस में है, इज द फ्रेंड ऑफ कृष्ण, एंड मैं दास्य रस में हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम फार। युद्ध में क्या था, वो फार, ही वॉज फार अवे एंड अर्जुना वॉज वेरी क्लोज टू कृष्ण। तो ऐसे कृष्णा पे मेडिटेट कर रहे हैं एज अ फ्रेंड के वाओ, ऐसा फ्रेंड काश मेरा भी कृष्णा ऐसा फ्रेंड होता। दैट इज द फर्स्ट सेक्शन। अब जैसे कि बात हुई है कि यहाँ पे लिखा है ना कि कृष्णा इज नॉट द ऑर्डर, ही इज नॉट द ऑर्डर कैरियर और ऑर्डर सप्लायर फॉर एनीवन, बट स्टिल ही डज दैट एज एन ऑर्डर, है ना? उन्होंने ऑर्डर क्यों माना? 2 रीजन से। एक तो हमने डिस्कस किया कि उनका फ्रेंड था, तो फ्रेंड करने के लिए तैयार है, और फ्रेंड की हमने डेफिनेशन देखी है, सोहरत। ही इज विद यू, ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग अनकंडीशनली। सो सेकेंड थिंग क्या है कि उनकी बात मानने से पूरे विश्व का कल्याण होता है। भक्त की बात मानने से, फ्रेंड, ऐसे फ्रेंड्स का भी कोई लेवल है ना, तो वो फ्रेंड की बात मानने से पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है, एंड दैट इज द सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस। विल फिनिश इट अप क्विकली, 40 मिनट्स हो गए, राइट? तो पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। और कैसे हो रहा है? अब आप कहोगे कि यार उन्होंने तो लिखा है द लॉर्ड डिमिनिश द ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ, हमने ये पढ़ा है ना उसमें। He and while there he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful deeds। अब ये मर्सीफुल कैसे हो सकती है, आप ये पूछ सकते हो। अब कृष्णा रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर गए और उन्होंने कहा कि ये देखो भीष्म की आयु हर ली, ये देखो द्रोणा की आयु हर ली। He shortened their lifespans just by his glance। That's what he did। सो आपको हो गया यार ये तो बड़ा गलत है यार, कैसे इसने तो अपने मतलब कृष्णा इज पार्शियलिटी करी ना उन्होंने।
जाके उनको मार दिया, इजंट इट? तो बड़े बड़े इजीली ये लग सकता है ना आरोप कृष्णा पे। और क्या, वैसे ही कृष्णा तो क्या है, लीडर है, भक्तों के लीडर है, और लीडर्स पे ये आरोप नॉर्मली लगता है ना कि यार ही इज पार्शियल, उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, इजंट इट? सो बट क्या वो पार्शियल थे? नो। बाय हिज मर्सीफुल ग्लांस, उन्होंने क्या किया उस ग्लास से? टेक देम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट? तो अगर कुछ लोगों के साथ गलत होता है फॉर द टाइमिंग, हमें लगता है कि ये तो गलत हुआ, तो बट हमें नहीं पता, हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली गलत होता है, बट कृष्णा के प्लान के अकॉर्डिंगली गलत नहीं है। अब आपको बाहर से देखने से ये लगता होगा कि कृष्णा ने उनकी आयु हर ली, उनको मार दिया, वेयर एज उनके लिए तो अच्छा हुआ। दे नॉट ओनली गेट लिबरेशन, दे गॉट देयर स्पिरिचुअल पोजीशन बैक। उनको अपनी स्पिरिचुअल पोजीशन वापस मिल गई, स्वरूप सिद्धि मिल गई उनको वापस, राइट? तो कोई भी चीज, हमें हमें क्या लेसन मिलता है इससे, कि कोई भी चीज अगर हमारे साथ भी या हमसे गलत होती है, तो दो चीजें होती हैं, या तो हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है या बुरा हो रहा होता है। तो जो भी अच्छा हो रहा है, हमें उसे क्या लेना चाहिए कि वो कृष्णा की वजह से अच्छा किया, भगवान ने हमारे लिए अच्छा किया। और जो भी गलत हो रहा है, जो हमें लगता है कि गलत है, दैट फॉल्ट वी शुड टेक, कि हमारी वजह से गलत हुआ, राइट? अच्छी चीज, और हम क्या करते हैं, अच्छी चीजों का क्रेडिट लेते हैं, बुरी चीजों का ब्लेम करते हैं, या तो भगवान पे ब्लेम करते हैं या और लोगों पे ब्लेम करते हैं, isn't it? Whereas it should be the other way around. We should take the responsibility of our own actions, and फिर भी on top of it कुछ अच्छा हो रहा है, तो it is because of the भगवान, because of the Krishna, right? तो उनके सारे, उनके सामने मरे, उनको क्या मिला? स्पिरिचुअल जगत मिला। इवन वो तो कृष्णा स्वयं वहां पर प्रेजेंट थे। हम तो ये बोलते हैं ना, वृंदा, हमने कई बार सुना होगा शास्त्रों में, कि जो वृंदावन में, जिसकी मृत्यु वृंदावन में होती है, उसको भगवान मिल जाते हैं। ठीक है? जब मैं अभी इनिशिएट होके आया वृंदावन से, तो जय सची प्रभु ने बोला, कहते यू गॉट इनिशिएटेड इन वृंदावन, विच मीन्स, इनिशिएशन मीन्स सेकेंड बर्थ, राइट? सो यू गॉट अ बर्थ इन वृंदावन। आई डेंट नो दैट, एंड दैट वॉज नॉट इवन प्लान्ड कि मैं ऐसा होगा। इट वॉज जस्ट बाय चांस कि, और मेरे गुरु महाराज प्रेफर करते हैं खैर वृंदावन में देने, यहाँ पर भी देते हैं, मेलबर्न में भी देते हैं, but he prefers to give that invitation in Vrindavan. So I didn't know that, but once I got it, then जैसे जी प्रभु ने मुझे बोला कि it's good that you got it in Vrindavan. तो अभी जो initiate नहीं हुए हैं, you can also try out that option to get initiation in Vrindavan. It's not, I mean, hard and fast, but you can just try if it is possible, right? So that's it, I think. It's 7:45. So we'll stop here and we'll see if there are any questions, comments. All good? ठीक है। धनका श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna.